as originally discussed by WALSH in 1953, is a plot of change of molecular orbital energies with change in angular variable or apex angles. WALSH diagram originally WALSH ने बताया था 1953 में, जो molecular orbital एनर्जी का चेंज के बारे में बताता है, जहाँ पे एंगुलर वेरिएबल में चेंज होता है, एपेक्स एंगल में चेंज होता है. इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस डिफरेंट मॉलिक्यूल वन बाय वन. इस मॉड्यूल के बारे में हम एक के ऊपर एक डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद ABT type molecule. It is assumed that lowest energy orbital of linear AB2 molecule are made solely from S and P atomic orbital. तो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स जहाँ पे लीनियर AB2 मॉलिक्यूल जो रहता है उसका एनर्जी लोवेस्ट ऑर्बिटल एनर्जी रहता है और वो S और P एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बना हुआ रहता है. फर्स्ट, टू लोन पेयर ऑफ S ऑर्बिटल, वन ऑन ईच B एटम. तो S ऑर्बिटल का जो दो लोन पेयर है वो एक हर B एटम में. It is assumed regarding the molecular shape that they are built up from sp hybrid. It is assumed regarding the molecular shape that they are built up from sp hybrid valency of A plus P sigma valency of two B atoms, and these are largely localized one to each AB distance. ये जाना जाता है कि मॉलिक्यूलर शेप जो है वो sp हाइब्रिड वैलेंसी से बना हुआ है A प्लस P सिग्मा वैलेंसी और दो B एटम का. सो यहाँ पे AB डिस्टेंस जो है लोकलाइज्ड है. The spectroscopic transition involve non-localized combination of localized orbital and be labeled as sigma J and sigma U. यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व रहता है, नॉन लोकलाइज्ड कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व रहता है लोकलाइज्ड ऑर्बिटल का जो लेबल्ड होता है सिग्मा J और सिग्मा U में. Note, here hybridization of the S and the P valency of the B atom is neglected for simplification. तो यहाँ पे S वैलेंसी का हाइब्रिडाइजेशन और P वैलेंसी का हाइब्रिडाइजेशन रहता है, B एटम का निगलेक्ट होता है सिंप्लिफिकेशन के लिए. The in-phase overlap of a P pi atomic orbital on each of the three atoms will form a pi U orbital. It will be holding 2,4 degenerate. यहाँ पर P pi atomic orbital का जो in-phase overlap रहता है हर तीन एटम में वो सिग्मा U ऑर्बिटल फॉर्म करता है और वो बॉन्डिंग और दो डीजेनरेट रहता है. The outer phase overlap of P pi atomic orbital on each of the B atom will result in formation of pi J orbitals. तो यहाँ पर P pi atomic orbital का जो आउट ऑफ फेस ओवरलैप जो रहता है B atom का, उसकी वजह से pi J orbital formation होता है, which have zero amplitude at the central atom. जिसकी वजह से central atom में ज़ीरो amplitude रहता है, being localized entirely on B atom और B atom पे localized होता है. It is two degenerate weak BB anti-bonding and EB non-bonding. तो ये जो है BB low 4 degenerate anti-bonding और EB non-bonding रहता है. The pi U orbital is formed by in the phase overlap of P pi atomic orbital on each of the B atom, and this overlap are out of phase, and the P pi orbital on the central atom it is two degenerate. तो यहाँ पर pi U orbital फॉर्म होता है इन फेस ओवरलैप P pi atomic orbital का हर B atom में, और आउट ऑफ फेस में ओवरलैप होता है P pi orbital के साथ जो सेंट्रल एटम में रहता है, दो फोल्ड डीजेनरेट होता है
BB बॉन्डिंग एंड AB एंटी बॉन्डिंग। तो BB बॉन्डिंग और AB एंटी बॉन्डिंग है। A bar is placed over the symbol to indicate the AB एंटी बॉन्डिंग नेचर। तो यहाँ पर बार रखा गया था, AB एंटी बॉन्डिंग नेचर का सिंबल इंडिकेट करता है। वॉल्श डायग्राम जो है फिगर 1 में कैसा होता है। एम्पिरिकल एंगुलर कोरिलेशन डायग्राम फॉर AB2 सिस्टम। एंगल BAB 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है। 2A1 90 डिग्री, 2 तो 2A1 90 डिग्री 2 सिग्मा G में चला जाता है। 1B2 1 सिग्मा U में चला जाता है। 3A1 1 पाई U में चला जाता है। 1B1 में चला जाता है। The geometry of various molecules of a given family can be easily predicted on the basis of occupancy of molecular orbiter and particular electronic state। तो अलग अलग फैमिली का जो अलग अलग मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होता है उसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल का ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे प्रेडिक्ट होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। जनरली when geometry result due to occupation of level whose orbiter energy curve decreases with diminish internuclear angle। इवेंट ज्योमेट्री जो होता है वो एक लेवल में ऑक्यूपाई करने पे होता है। जब भी ऑर्बिटर एनर्जी कर्व कम होता है इंटरन्यूक्लियर एंगल डिमिनिश होने के साथ साथ। The opposite side effect that is linear nuclear arrangement is observed। ऑपोजिट इफेक्ट के लिए लीनियर न्यूक्लियर अरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। और the other classes of molecular system can be explained in a similar manner by introducing different correlation diagram। उसके आगे भी मॉलिक्यूलर सिस्टम का क्लास एक्सप्लेन होता है उसी सेम टाइप की तरह, लेकिन अलग अलग कोरिलेशन डायग्राम इंट्रोड्यूस होता है। वॉल्श डायग्राम फॉर AB2 सिस्टम इज शोन इन फिगर 3। तो AB2 सिस्टम के लिए जो वॉल्श डायग्राम में दिखाया गया फिगर 3 में, this system possesses more strongly linear ground state structure। तो ऐसा सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्गली लीनियर ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर होता है। Their version with the bent nuclear geometry can be ascribed to the successive population of the 1 pi G minus 4B2 IA2 pair of molecular orbital due to increase in the number of valence electron। यह वर्जन बेंट न्यूक्लियर ज्योमेट्री डिस्क्राइब करता है 1 पाई G 4B2 IA2 का पॉपुलेशन जो रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पेयर रहता है, क्योंकि नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसकी वजह से 2 से लेकर 12 से लेकर 16 तक। However, strongly bent tendencies exhibited by the occupation of 6A1 molecular orbital। लेकिन strongly bent tendency जो है वो 6A1 molecular orbital दिखाता है। Stable species such observation are equally valid for both ground and excited state। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन जो वैलिड रहता है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट दोनों में। And the stereochemical change in electron transition can also be understood by studying the Walsh diagram। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो
फैक्टर चेंजेस है उसको समझा जा सकता है वॉल्श डायग्राम से। तो ये देखो वॉल्श डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल विद बेंड लेफ्ट एंड द लीनियर राइट। तो इधर लेफ्ट साइड में बेंट है, ठीक है, और राइट साइड में लीनियर है। तो यहाँ पे सिग्मा सी एच है, सिग्मा सी एच पाई सी एच टू एन पाई पाई है। The orbital overlap WALSH diagram for AB2 molecule। तो AB2 molecule के लिए जो orbital overlap WALSH diagram है तो ये जो है molecular orbital है, orbital overlap है और ये WALSH diagram है। यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री में बॉन्ड एंगल 1A1 और बॉन्ड एंगल लीनियर 180 डिग्री। तो क्या होगा 3 सिग्मा जी। फिर यहाँ पे 2A1 1 पाई यू, ये बेंट में है, ये लीनियर में है। फिर नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है 1BZ 1 सिग्मा यू। सो यहाँ पे 1BZ 1 सिग्मा यू है। फिर 1B1 और 1 पाई यू जो है वो 1B1 और 1 पाई यू। तो इस तरीके का एंगल दिखाता है। 90 डिग्री बेंड रहता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री बेंड होता है, 180 डिग्री लीनियर होता है।